Hi guys, I hope you all are doing good. In this video, we are going to learn about 20 methods of teaching, and all these 20 methods of teaching can be classified under teacher-centered and learner-centered teaching methods, and also direct teaching and indirect teaching methods. So this video is going to be a little long, so you'll have to be a little patient. At the end of it, you're going to ace it. ठीक है. So before कि हम आगे बढ़े, I am Dr. Priyanka and you can know more about me from the description given below. Okay, so let's get started. Let's come to the teacher-centered teaching method. So this is an instructional strategy in which the teacher is the central figure. वो एक फलक्रम की तरह हैं जो सभी knowledge directly transmit करते हैं बच्चों को. And जो बच्चे होते हैं learners, they are the passive recipients. जैसे कि lecture method होता है हमारे classrooms में, वो एक बहुत ही perfect example है teacher-centered method का, क्योंकि teacher ही content control करता है और teacher ही decide करता है कि कौन सी activities या कौन सी exercises students करेंगे. ठीक है. So let's come to learner centered method. Learner centered method में learners के ऊपर focus किया जाता है, उनकी development के ऊपर focus किया जाता है. जो भी teachers की strategy होती है वो इस तरह framed होती है कि बच्चे सीखें और उनके ऊपर सारा का सारा focus हो. It involves learners actively in constructing their own knowledge by engaging in activities, skill building and also reflection on the previous learning they have done. ठीक है. एग्जाम्पल है फ्लिप्ड क्लासरूम मेथड, जो कि मैं आपको आगे जाके डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी. Now let's come to another classification which is known as direct teaching method, जिसके ऊपर बहुत सारे questions आ रहे हैं UGC में. So what is this method? In this method, the teacher directly provides the information. वो बोल के स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि क्या बच्चों को आगे करना है. बेशक वो किसी कॉन्सेप्ट के बारे में नॉलेज हो या फिर कोई फैक्ट हो, प्रिंसिपल हो, etc. So this method works best in teaching of subjects like mathematics, grammar, computers, science, and history. Now let's come to indirect teaching method. The teacher does not provide direct steps or directions regarding the concept directly, but stimulates the learners to learn through observations, abstractions and problem solving. यहाँ पे teacher direct teaching method के बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल opposite वो डायरेक्शंस नहीं देते, नहीं बताते. उन्हें सिर्फ फॉर एग्जांपल कोई विजन्स या फिर जो वीडियोस होते हैं वो दिखाते हैं, या उन्हें फील्ड स्टडी मेथड के थ्रू उनको रियल लाइफ सिचुएशंस में लेके जाते हैं जहां बच्चे प्रॉब्लम सॉल्व्स करते हैं. एंड दे लर्न थ्रू एब्स्ट्रैक्शंस, या वो ऑब्जर्व करते हैं कोई फिनोमिनन एंड दे नोटिस इट एंड देन दे कम टू द टीचर एंड गेट टू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट. Now coming to flipped classroom, as we discussed, is a learner-centered method. So teachers make and upload videos. जो teachers होते हैं वो upload करते हैं videos को, बेशक YouTube पे करें, school या फिर higher education university की website पे करें या app के ऊपर करें, और outside the classroom यानी कि बच्चे अपनी pace और अपनी convenience के हिसाब से वहाँ से सीख सकते हैं, उन वीडियोस से सीख सकते हैं. एंड जब वो अपने फिजिकल क्लासरूम में आएँ तो दे कैन आस्क देयर डाउट्स, या जो भी उन्हें क्लैरिटी चाहिए कॉन्सेप्ट्स के बारे में, दे कैन आस्क द टीचर. सो इन दिस वे द क्लासरूम इज क्रिएटेड आउटसाइड द फिजिकल classroom because the students can learn and see the videos wherever and whenever they want to. Now let's come to cybernetics. Cybernetics means to steer or to navigate or to direct. Classroom cybernetics is constituted by constructivism, interaction and feedback. अब ये constructivism क्या है? ये एक approach है, strategy है जिसके अंदर 5 steps होते हैं. Word ही बताता है कि इसके अंदर the students are expected to learn something and not just learn but also to construct knowledge. मतलब कि वो more knowledge gain करें. इसके अंदर आती हैं 5 E's which are engage. मतलब कि कोई भी एक्टिविटी टीचर स्टूडेंट को देंगे उनको engage करने के लिए. फिर उसे बोला जाएगा कि उस कॉन्सेप्ट को वो एक्सप्लोर करें, या जो भी उन्होंने ऑब्जर्व किया है उसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज गेन करें. उसके बाद एक्सप्लेन करें एंड द टीचर ऑल्सो एक्सप्लेन्स थिंग्स रिलेटेड टू इट.
और उसके बाद एलैबोरेट किया जाए, मतलब कि जो स्टूडेंट्स ने नोटिस किया और टीचर्स ने नोटिस किया उसको वो कंस्ट्रक्ट करें, उस नॉलेज को इकट्ठे एक्सप्लेन करें, एलैबोरेट करें और लास्ट में उस कॉन्सेप्ट को इवैल्यूएट किया जाए, उसको क्रिटिकली उसका एनालिसिस किया जाए। ठीक है, इसके बाद इंटरैक्शन होती है। साइबरनेटिक्स का जो सेकंड स्टेप है दैट इज इंटरैक्शन एंड द थर्ड इज फीडबैक। बच्चे फीडबैक देते हैं कि उन्हें इस प्रोसेस या स्ट्रैटेजी से कितना फ़ायदा हुआ, वो कॉन्सेप्ट जो उन्होंने सीखा, उसे बिल्ड किया, उसकी रियल लाइफ में क्या वैल्यू है या क्या नहीं वैल्यू है, या वो उसे किस तरह अप्लाई कर सकते हैं प्रैक्टिकल सिचुएशंस में। सो द नेक्स्ट मेथड इज़ लेक्चर मेथड, जो कन्वेंशनल टीचिंग होती आई है, जिसमें टीचर इज़ द सेंट्रल फिगर। ही कम्स और जो भी उन्होंने कंटेंट पढ़ाना है वो पढ़ाते हैं, उन्हें कोई एक्सरसाइज देनी है तो वो देते हैं, नहीं तो नहीं देते। देयर मेन सोल पर्पस इज़ कि जो भी कंटेंट है वो बच्चों को जाके वैसे पढ़ा दिया जाए। Team teaching method. It is a strategy of a group or team of teachers to collectively teach a class with respect to their expertise in the subject. आपने देखा होगा, आप सभी हायर एजुकेशन के ही स्टूडेंट्स हो, कि जब भी सेमेस्टर्स होते हैं तो उसमें कई टॉपिक्स एक ही सब्जेक्ट के डिवाइड कर दिए जाते हैं कि ये लेक्चर एक टीचर लेगा और दूसरा टीचर दूसरा सेक्शन पढ़ाएगा उसी यूनिट में से। इसे कहा जाता है टीम टीचिंग। दिस इज़ ऑल्सो अ टीचर सेंटर्ड मेथड बिकॉज टीचर्स डिज़ाइन करते हैं कि करिकुलम का कौन सा पार्ट उन्हें किस तरह पढ़ाना है और किस समय पढ़ाना है। थर्ड आता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। इसमें टीचर्स डेमो दिखाते हैं, बच्चों को परफॉर्म करके दिखाते हैं। एक्सपेरिमेंट, अगर कोई साइंस की कोई भी फिनोमिनन है सो दे शो इट टू द किड्स, वेदर इट इज़ इन लेबोरेटरी या फिर वो स्मार्ट बोर्ड के थ्रू उन्हें करके दिखाएं। सो इट इज़ अ विजुअल अप्रोच जिसमें सभी सेंसेस का इन्वॉल्वमेंट होता है और दिखाया जाता है बच्चों को कि जो थ्योरी टीचर्स बता रहे हैं या जो कंटेंट टीचर्स बता रहे हैं उनकी एप्लीकेशन रियल लाइफ में कैसे होती है। मतलब कि टीचर गिव्स द डेमो and the students visualize it. They are the witness to see that how the phenomenon is applied in real life. Again, this is a teacher centered method. Now coming to deductive method. Deductive method and inductive method, mark my words, they are the most important methods जो evergreen हैं। UGC नेट जब से शुरू हुआ है इन दोनों मेथड्स के ऊपर क्वेश्चनिंग होती ही है और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इन दोनों के बारे में। सो लेट अस लर्न डिडक्टिव मेथड है क्या। इसमें टीचर इंट्रोड्यूस करता है कोई कॉन्सेप्ट और फिर उसके रिलेटेड एक्सरसाइजेज या टास्क्स बच्चों को देते हैं कंप्लीट करने के लिए। तो एक तरह से ये डायरेक्ट टीचिंग मेथड है एंड टीचर सेंटर्ड भी है बिकॉज टीचर डिसाइड करता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, किस समय पढ़ाना है, कौन सी एक्सरसाइजेज देनी है। सो इट्स लाइक अ डायरेक्ट टीचिंग मेथड। नाउ कमिंग टू इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड इज़ एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ डिडक्टिव मेथड। इसमें टीचर्स फॉर एग्जाम्पल विजुअल्स दिखाते हैं या वीडियोज़ दिखाते हैं बच्चों को या कोई एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाते हैं और फिर उनको बोला जाता है कि क्या कॉमन फिनोमिनन आपने ऑब्जर्व किया। बच्चों को बोला जाता है that what did they notice was common in all these observations, and when they notice the phenomenon तब टीचर उनको कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं। एंड दिस इज़ मोर ऑफ अ स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। एंड जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है इंफॉर्मेशन की वो है स्पेसिफिक टू जनरल, मतलब उन्होंने जो विजन्स देखे या जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स देखे उसकी एप्लीकेशन और भी ज़्यादा जनरलाइज कैसे हो सकती है। दिस हैपन्स इन इंडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड में जनरल टू स्पेसिफिक होती है कि कोई कॉन्सेप्ट बता दिया उनको और उसके बाद बच्चे देखेंगे कि उसे कहाँ कहाँ अप्लाई किया जा सकता है। Now let's come to heuristic method. Now this method is based on trial and error theory. इसमें टीचर प्रॉब्लम या फिर कोई भी एक्सरसाइज बच्चों को देते हैं। इट्स लाइक प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। कोई भी टास्क दिया और फिर उसके बाद बच्चों को बोल दिया गया कि आप लाइब्रेरी, कोई भी रिसोर्स, वेदर इट इज़ लाइब्रेरी, वेदर इट इज़ लेबोरेटरी, वेदर इट इज़ एनी वर्कशॉप, सेमिनार, वॉट एवर they want to access, they can access, but उन्हें उसका solution लेके आना है। This is known as heuristic method. अब ये जो method है it develops logic, बच्चों को research करनी आती है, creative thinking बढ़ती है and problem solving attitude उनके अंदर
आता है. So definitely this is a method which is a very important method applied in higher education system. Now coming to blending learning method, it's more like blended teaching method. The name itself tells you traditional approach और modern approach, इनको इकट्ठे अप्लाई किया जाता है blended teaching approach में. It's also known as hybrid teaching. It is a blend of traditional classroom teaching, मतलब lectures or demonstration, combined with online teaching and independent study. मतलब कि उसके साथ ऑनलाइन लेक्चर्स भी दिए जाते हैं एंड इट अलाउज स्टूडेंट्स टू हैव मोर कंट्रोल ओवर देयर टाइम, पेस एंड स्टाइल ऑफ लर्निंग. इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ओपन लर्निंग का. उसमें आपको कई वीडियोज़ या कोई सब्जेक्ट मैटर घर पे दे दिया जाता है, घर पे डिलीवर कर दिया जाता है. एट द सेम टाइम यू हैव टू कम एंड अटेंड फॉर अ फ्यू डेज classes in the university या फिर college में. So one of the best example of blended teaching method is the open system of education. And of course it is applied in many classrooms these days. Teachers lectures भी देते हैं, at the same time discussions, debates भी कराते हैं and interactive smart boards जो हैं उसका भी प्रयोग करते हैं. So in a way our classrooms these days, especially in our country, they are following a blended teaching approach. Now let's come to collaborative or cooperative teaching method. Now you can very well know from the name itself that it is a student-centered approach जिसके अंदर teachers students के groups बनाते हैं और उन्हें कोई भी activity या कोई भी problem देते हैं और बोलते हैं कि वो आपस में interact कर सकते हैं और independently भी work कर सकते हैं and collaboratively they have to come up with a solution. Okay, so one of the latest papers of the UGC had a question on think, pair, share. So ये जो method है इसके बारे में question आया था UGC नेट के latest paper में. So ये है क्या? इसके अंदर teachers groups बना देते हैं बच्चों के. हो सकता है वो पेयर वाइज हो, मतलब कि 2 बच्चे, या हो सकता है ज़्यादा बच्चे हों, 3 से 4 बच्चों का ग्रुप बनाएं और उन्हें आपस में कोई प्रॉब्लम दें और उनको ग्रुप वाइज वो उसका सॉल्यूशन ढूंढना है. और थोड़ी देर के बाद ग्रुप्स इंटरचेंज भी हो सकते हैं, यानी कि ग्रुप के मेंबर्स एक दूसरे के साथ अपनी प्लेसेस को इंटरचेंज कर सकते हैं. सो एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि आपका जो ग्रुप है वो अपना एक कोलैबोरेटिव व्यू या कोलैबोरेटिव सॉल्यूशन देता है. एट द सेम टाइम ईच चाइल्ड ऑल्सो इंडिविजुअली टेल्स हिज थॉट on the subject. Okay, so this method came in the latest paper, so please learn this carefully. एंड रेसिप्रोकल टीचिंग क्या होती है? उसके अंदर टीचर कोई भी आपको कॉन्सेप्ट देता है और फॉर द टाइम बीइंग द टीचर बिकम्स द स्टूडेंट एंड लेट्स द स्टूडेंट perform or explain the concept. Okay, now let's come to personalized method. It is based on the principle that each child is different. So if you have seen my video, the prior to this one, उसके ऊपर individual differences के ऊपर मैंने काफ़ी elaborate किया है. That means that in a class, each child, each individual is very different from the other. Irrespective of the class, even in life, no individual actually matches with another one. बेशक उनका IQ हो, बेशक EQ हो, फैमिली बैकग्राउंड हो, पर्सनालिटी हो, नेचर हो, बिहेवियर हो, एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट. उनका एप्टीट्यूड डिफरेंट होता है, इंटरेस्ट लेवल डिफरेंट होता है. सो पर्सनलाइज्ड टीचिंग मेथड में टीचर्स अपना टीचिंग स्टाइल अडेप्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल कई बच्चे ऑडियो सुन के ज़्यादा लर्न करते हैं, कई विजुअली अगर उनको आप वीडियोस दिखाओ या फिर प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशंस दिखाओ वो तब सीखते हैं. तो यहाँ पे टीचर्स अडेप्ट करते हैं अपना टीचिंग स्टाइल बच्चों की रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए. जैसे आपने देखा होगा दे गिव यू नो देर आर सर्टन सब्जेक्ट्स विच यू हैव टू डू मैंडेटरीली एंड देर आर सर्टन अदर सब्जेक्ट्स जिसमें वो आपको चूज़ करने के लिए बोल देते हैं, राइट? सो दिस इज़ काइंड ऑफ दैट कि वो पर्सनलाइज केटर करने की कोशिश करते हैं. ऑब्वियसली द टीचर्स are different for different activities because जब आप हायर एजुकेशन में आते हो तो आप स्पेशलाइजेशन करते हो, बट इन अ वे इट इज़ ऑल्सो पर्सनलाइज्ड. केस स्टडी मेथड क्या है? बहुत नाम सुना होगा आपने. सो इसमें क्या होता है कि स्पेसिफिक केस दिया जाता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ मेडिकल लाइफ. कोई पेशेंट है, उसकी कोई नए डिजीज़ का, एक नए तरह के डिजीज़ का डायग्नोसिस हुआ है, तो डॉक्टर्स को बोला जाता है कि आप उनकी केस स्टडी करो पेशेंट की. मतलब कि हिस्ट्री देखो, फैमिली हिस्ट्री देखो, जेनेटिक्स के बारे में आप पढ़ो. अगर साइकोलॉजिकल इशू है तो उनके बारे में आप उनसे इंटरव्यूज़ लो या उन्हें क्वेश्चनर्स दो. सो
इन डेप्थ स्टडी इसे बोला जाता है, केस स्टडी को. अगेन दिस इज़ अ स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड and of course an indirect method. So इसमें क्या होता है, the cases referred are taken from real life issues and situations. For example, कोई teacher है वो notice करता है कि one of the student is not attentive in the class or is not very sincere. तो वो क्या करते हैं, they try to notice, they try to go into the depth of his family life or his personal life or his friend circle, and they do a study on this, that what is the reason that he is not attentive in the class or why is he disturbed. So these are just few examples. और भी examples हैं जिनकी case studies की जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, अगर वहाँ पे कोई क्लास गई तो वहाँ पे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है उनको और वेरियस टॉपिक्स दे दिए जाते हैं उसके बारे में जानकारी लेने के लिए या रिसर्च करने के लिए. एंड व्हेन दे से रिसर्च इट मीन्स इन डेप्थ स्टडी. सो द केसेस आर डिस्कस्ड विद द हेल्प ऑफ स्टेटिस्टिकल डेटा, चार्ट्स, ग्राफ्स, परसेप्शंस ऑफ डिफरेंट पीपल, जैसे मैंने कहा कि इंटरव्यू मेथड और क्वेश्चनियर मेथड, रिसर्च रिपोर्ट्स एंड अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन. अगेन ये बहुत ही लॉजिकल और रैशनल मेथड है एंड इट फॉलोज अ साइंटिफिक अप्रोच. Now let's come to role play or simulation. Now role play and simulation are more or less alike. दोनों एक जैसे हैं काफ़ी तरह बट माइन्यूटली डिफरेंट हैं. इनमें होता क्या है कि रियल लाइफ सिचुएशंस को इमिटेट किया जाता है क्लासरूम्स में और उनसे वो एक्सपीरियंसेस गेन करके, जब वो सिचुएशन में होते हैं तो वो एक्सपीरियंसेस गेन करके टीचिंग उनकी कंप्लीट होती है. दे लर्न समथिंग आउट ऑफ इट. सो कोई भी रियल लाइफ फिगर है, बेशक वो पॉलिटिशियन हो या बेशक कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो या कोई फिलेंथ्रोपिस्ट हो, कोई भी पब्लिक फिगर, या फिर इवन समथिंग दैट हैज़ हैपन आउटसाइड द यूनिवर्सिटी और एन इंस्टीट्यूशन, और वो जो एक्चुअली में सिचुएशन है उनको वो प्ले करते हैं, उन्हें इनैक्ट करते हैं क्लासरूम में और उनके एक्सपीरियंसेस से लर्न करते हैं. सो in this way it is like a real drama, but a constructive drama that they construct inside the classrooms. Next है problem based teaching. Again student centered है, role play भी student centered है. इसमें क्या होता है कि कोई प्रॉब्लम दी जाती है बच्चों को और उनको बोला जाता है कि इसका सॉल्यूशन आप ढूंढें. हायर एजुकेशन में ये मोस्ट यूज्ड टीचिंग प्रोसेस है. Now this allows students to become more active in their learning. जब उनको आपने टास्क दे दिया, obviously the students will be actively involved to find the solution. इसके अंदर उनको रिसर्च की प्रैक्टिस होती है, उनकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का उनको आइडिया लगता है एंड फिर उसके बाद जो स्किल्स उन्होंने लर्न किए हैं वो अप्लाई करते हैं एंड दे कम आउट विद अ रैशनल सॉल्यूशन. नाउ लेट्स कम टू MOOCs एंड ई-लर्निंग. नाउ MOOCs का फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज और हमारे सिलेबस में स्पेशली है स्वयं और स्वयं प्रभा. They are a result of use of internet and multimedia in the process of education. मतलब कि इंटरनेट के थ्रू एजुकेशन या एजुकेशनल कोर्सेज बच्चों तक कैसे पहुंचाए जाएं एंड द गवर्नमेंट हैज़ टेकन इनिशिएटिव टू डू दैट. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई वुड लाइक टू से दैट UGC नेट के फ्यूचर पेपर्स में इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आने वाले हैं. सो प्लीज़ डू दिस वेरी केयरफुली. पहले भी आए हैं बट इन द कमिंग पेपर्स दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. Swayam is a program by Government of India and is designed to achieve 3 cardinal principles of education: access, equity and quality. Access मतलब हर कोई उसे access कर पाए. Equity का मतलब होता है सबको equal लाना, मतलब irrespective of the fact कि कोई रूरल में है या कोई अर्बन में है, उन्हें equal कर दिया जाता है. मतलब अगर आप इसे ट्रेडिशनली देखें, जब ई-लर्निंग नहीं थी तो अगर कोई +2 में है और उसे मेडिकल लाइन चूज़ करनी है तो उसको अगर कोचिंग लेनी है और तब तक ये ओपन ऑनलाइन रिसोर्सेज नहीं आए थे तो उनके लिए कोचिंग सेंटर इज़ क्लोज़र, उनके लिए वो एक्सेस करना ईजी हो जाएगा. एट द सेम टाइम अगर कोई रूरल एरिया में बच्चा है तो वो कोचिंग नहीं ले पाएगा. तो जब वो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं सो डेफिनेटली एक पार्शियलिटी या बायस आ जाता है. उसे कवर करने के लिए ये MOOCs को गवर्नमेंट लाए हैं. इंटरनेट कैन बी एक्सेस्ड बाय एवरीबडी एंड इक्वली. बेशक रूरल एरिया में बच्चा बैठा है या अर्बन एरिया में, उसे इक्वल एजुकेशन मिल रही है उसकी एक्सेस में. और क्वालिटी मतलब कि प्रॉपर जो क्वालिफाइड लोग हैं जिनके पास स्किल हैं वो पढ़ा रहे हैं बेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन से. तो इसके अंदर 4 क्वाड्रेंट्स हैं.
पहले आपको लेक्चर या फिर वीडियोस दिखाए जाते हैं जिसमें आपको पढ़ाया जाता है, प्रॉपर रीडिंग मटेरियल कंटेंट जो है वो दिया जाता है, उसका PDF भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। कोर्सेज करने के बाद क्विजेज होती हैं या क्वेश्चन आंसर मेथड होता है जिसके ऊपर आपको आंसर्स देने होते हैं और फिर कंप्यूटर खुद ही आपको बताता है कि आपने स्कोर कैसे किया है, या फिर टीचर्स भी इसे असेस कर सकते हैं। और फोर्थ होता है डिस्कशन फोरम, मतलब कोर्स करने के बाद आप जो स्पेशलिस्ट्स हैं उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं कोर्स के बारे में, कंटेंट के बारे में, अगर आपको कोई डाउट है एट्सेट्रा। स्वयं के अंदर जो कंटेंट आता है वो 9 एजुकेशनल की टॉप बॉडी से आता है। वो हैं AICTE, UGC, NCERT, IGNOU, NIOS, NPTEL, IIMB, NITR and CEC। Now you don't need to be afraid because मेरी लास्ट स्लाइड में इन सभी के ऊपर इनकी एब्रीविएशंस को मैंने दिखाया हुआ है, तो आप उसमें से देख सकते हैं। Now the next online platform is स्वयं प्रभा। 34 DTH चैनल्स प्रोवाइड किए हैं गवर्नमेंट ने, जो कि टेलीकास्ट होते हैं 24/7, मतलब पूरा दिन वो टेलीकास्ट होते हैं थ्रू GSAT 15 सैटेलाइट। So please mark my words, these should be on your tips because these will definitely be asked. Every day there is a new content for at least 4 hours. रोज़ नया content इन पे दिखाया जाता है और हर कंटेंट 5 बारी दिखाया जाता है अलग अलग टाइम पे। इससे अलाउ किया जाता है कि बच्चे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देख लें। अगर वो दिन में काम कर रहे हैं तो वो रात को देख लें अकॉर्डिंग टू देयर सूटेबिलिटी। सो यहाँ पे हायर एजुकेशन मतलब इंजीनियरिंग, मेडिकल से लेके स्कूल एजुकेशन, इन सब के कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। सो ऑल दीज चैनल्स आर अपलिंक्ड फ्रॉम बिसाग, इट्स अ प्लेस इन गांधीनगर, ओके। और जो भी कंटेंट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं NPTEL, IITs, UGC, IGNOU, NCERT एंड NIOS से। और इनफ्लिबनेट जो है वो मेंटेन करते हैं वेब पोर्टल। और भी हैं जो रिसर्च के लिए यूज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल शोध गंगा है, शोध गंगोत्री है। वी विल डू दैट। आई थिंक ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं स्पेशली मूक्स, इनके ऊपर एक अलग लेक्चर करना चाहिए बिकॉज अदरवाइज इफ आई इलोंगेट दिस तो आपकी जो अटेंशन स्पैन है वो वैनिश हो जाएगा एंड देन देयर विल बी नो यूज़ ऑफ दिस। सो एज आई प्रॉमिस्ड, the last slide is showing you the full forms of all these organizations. AICTE stands for All India Council for Technical Education. NPTEL is National Program on Technology Enhanced Learning. It is for engineering. UGC is University Grants Commission. I think you know about it. CEC is Consortium for Educational Communication. NCERT is National Council of Educational Research and Training. You know about it. NIOS is National Institute of Open Schooling. IGNOU, Indira Gandhi National Open University. IIMB is Indian Institute of Management in Bangalore. NITR is National Institute of Technical Teachers Training and Research. So you can very well know that these are the top bodies of higher education. So जो भी material है स्वयं में वो ये provide करते हैं. All right. So I hope you have now aced all these methods of teaching and you are ready to answer all the questions which will come in the UGC NET paper. Alright guys, I hope you enjoyed the lecture as much as I did, and don't forget to subscribe the channel and press the bell icon so that you get to know when I post my next lectures. Alright, so please subscribe and like it, share amongst your peers, and please take care of yourselves and keep smiling till I see you next.